Alright, Ji, next email is a special one because I know these people a little personally. Not the guy, but the lady in question. Dear Junaid Bhai, I hope this email finds you in great health and spirits. I've been a long time admirer of your work and your thought provoking content, which has a way of reasoning deeply with people across borders. My journey with your videos began when my father introduced me to your insightful takes on topics like the science behind shopping and your perspective on Israel. Since then, I've been an avid follower of your work. I'm writing to you today not just as a fan, but as someone in a unique and challenging situation, hoping to share my story with someone whose views I deeply value. I'm an Indian currently in a relationship with a Pakistani girl, and I dream of building a future with her. However, as you can imagine, navigating this relationship amidst the political and cultural tensions between our countries feels daunting at times. Despite the odds, our story began in a very simple and pure way. We met online and started talking. This was back in a few years ago, and over time, our conversations grew into something meaningful. She flew to London shortly after we started talking, and while things were still light-hearted at that stage, I couldn't help but feel drawn to her. Initially, I found it hard to imagine a serious future with her because of the narratives I had grown up with. Living in India, even the thought of marrying a Pakistani feels dangerous and next to impossible, as the political climate and societal influences propagate so much hate. These challenges weighed heavily on my mind, making me question whether such a relationship could ever be viable. But our connection only deepened. We shared so much discussions about our countries, cultures, politics, and even our mutual love for your content. She didn't know about your work before, but after I introduced her to your videos, she became a fan as well. Just pure Ganji Swag magic. What made it even more special was that by sheer coincidence, she saw you at Selfridges in London and made a short video with you for me. I was overjoyed. I attached the video she made with you at Selfridges. I hope it jogs your memory. Life, however, had hit its twists. I was working as an architect in India, and while she often encouraged me to move to London, I had no compelling reason at that time. My plans for further studies also took a long and winding path. I initially chose the UK for a master's in construction project management, but due to various factors and my own indecisiveness, I kept switching plans between UK and the US. This back and forth consumed a year of my life. Finally, I chose UK, but by the time I arrived in London in September 2023, she had already flown back to Karachi in April. We both regret the timing, but perhaps Allah has a better plan for us. Inshallah, she had completed her undergraduate studies by then and not having any solid reason to stay in London, decided to return home. अच्छा वो पहले लंदन में पढ़ रही थी ये इंडिया में थे and then by the time he came she had to come back to Karachi because degree हो चुकी थी. Fine. Agreed. At the time, neither of us knew that our connection would grow into something so meaningful. Anyway, we were connected through calls and messages. I knew in my heart that she would visit me. After all, she had her brothers living here as well. So there were even more reasons for her to return. She had lived in London for 3 years during her undergraduate studies, and I thought getting a visa would be a formality. It felt like just a matter of time before she would be here, and the thought of finally meeting her face to face filled me with excitement. In late November, she applied for the visa. I had already planned a trip to Mumbai, so the timing seemed perfect. I would spend a month there, and when I flew back to London, she would be arriving around the same time. Unfortunately, she called me and said the visa got rejected. We were heartbroken because we never anticipated it. She had lived in London before. This was supposed to be a straightforward process. But it's actually not. I'll tell you later on why. She eventually started making her documents stronger, but fate was unkind yet again. Her visa was rejected the second time. It was devastating and exhausting. What makes this story even more unique is that until recently we hadn't met in person. For years, our connection grew purely through conversations online. Finally, after years of waiting, we made a plan to meet in person, and on September 27, 2024, in Turkey, that dream became a reality. Okay, मेरी बेगम के साथ भी यही था भाई मैं इंग्लैंड नहीं जा सकता था and like so we had to meet somewhere else and then we got married in Istanbul. So टर्की का काम ही यही रह गया लोगों को जोड़ने का. Okay. That day felt like one of the happiest of my life. Seeing her in person for the first time was surreal and beautiful. But just a week later, on October 3rd,
One of the hardest moments of my life followed as we said our final goodbyes. We both cried and we were emotionally devastated as I watched her walk away for the last time, slowly disappearing from my view. Now, that is a very painful view to see. By the way, परवीन शाकिर कहती थी कि इंसान को ज़िंदगी में सिर्फ दो बार मोहब्बत होती है, एक बार गलत शख्स से सही वक्त पे और दूसरी बार सही शख्स से गलत वक्त पे, राइट. So the very first relationship that I was in, it was also sort of a long distance, but within Pakistan. So every time I would fly to her city and see her, and like we'd spend some time together, you know, I would stay over, वगैरह वगैरह. So every time I dropped her, and like, you know, she would walk away, I would always expect कि she would turn around to, हालांकि खुदाफिज हो गया है, गले भी मिल लिए, टाटा बाय बाय भी हो गया, बट एक वो दिल में होता है यार, वो एक बार ज़रूर, you know, she would turn around and wave again and then walk into जहाँ उन्होंने जाना है. And she never did that. And it used to hurt me a lot कि यार, what's going on? And at that point in time, I felt like she's not the one. We do like each other, but I don't think it's going to go any further because, you know, someone who's like very, very extremely genuinely in love with you, वो तो उल्टा चल के जाते हैं, because like, so they don't lose a sight of you. And she would just walk away. So like she had her warm moments, but like in चीज़ों में, like I found her very cold. I don't know if she's listening right now, but yeah, this is my feedback 22 years later. So yeah, it's a tough, so उसके बाद से I've always made sure कि जब भी इस तरह की situation हो, at least I should turn around and, you know, wave another goodbye. My wife drops me to the airport every time and I make sure, you know, I wave her one last time before I completely disappear behind the security wall. Because it hurts when someone doesn't. So yeah, man, I know the feeling. So there's this movie that you guys need to watch, Someone Like You. It's with Ashley Judd. I had a massive crush on her. I don't know why. Ashley Judd or Hugh Jackman. Now, Hugh Jackman, you would think, oh, X-Men, no, full action hoga, ye hoga, Wolverine aayega. Nahi. Usme he played, it's a romantic movie. So usme there is a scene where somebody breaks up with Ashley Judd and she's on that table, restaurant hai, and उसमें फिर उसका एक मोनोलॉग आता है. It's about, you know, let me read it out to you guys. It's like a beautiful line. There are few things sadder in this life than watching someone walk away after they've left you. Watching the distance between your bodies expand until there's nothing but empty space and silence. That scene will make you cry अगर आपके दिल में थोड़ा सा, सीने में थोड़ा सा दिल है. The way she's crying on that table because the guy breaks up with her, not Wolverine, the other guy. And yeah, so मुझे ये लाइन हमेशा याद रही. It's a quirky rom-com टाइप की फिल्म है. Someone Like You. You should watch it over the weekend. Wayne's World, Someone Like You. मैं आपको फिल्में भी बता रहा हूँ साथ साथ. So yeah. Okay, coming back to the email. कहाँ से कहाँ निकल गया मैं? The weight of that moment, knowing how difficult that the distance would be once again, was immense. It was an incredibly emotional and heartbreaking experience, one that still lingers in my mind. Today I find myself torn between hope and despair. The societal and political challenges we face as Indian and Pakistani couple weigh heavily on me, but my love for her gives me strength. Junaid bhai, your balanced and thoughtful perspectives have always inspired me, and I felt compelled to share this part of my life with you. Concerns and challenges. Now, एक list है. Number 1. Building stability in the Middle East. We're considering settling in the Middle East as a neutral ground. Shoaib Malik, Sania Mirza. But we're concerned about the lack of pathways to citizenship. Even after living there for several years, citizenship isn't an option, leaving us with a sense of instability. How can we build a stable life in such circumstances, especially when we want to ensure a secure future for our family? Number 2. Registering our marriage. Since neither India nor Pakistan allows the registration of cross, अबे ये शादियां भी रजिस्टर नहीं करते. क्या लेवल है दुश्मनी का यार, खुदा को मानो यार, बड़े हो जाओ, 75 साल के हो गए हो दोनों. They don't allow the registration of cross-border marriages. We're unsure where to officially register our marriage. Is there a neutral or international jurisdiction that would recognize and formalize our union? Of course, the entire world. Turkey में होता है, but Turkey का process थोड़ा सा लंबा है because when I was getting married there, we thought about registration as well. पता चला वहाँ तो 20-22 दिन का प्रोसेस है. उसमें आपका पूरा टेस्ट होते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग होती है, कोई बीमारी तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. सो बड़ा लंबा प्रोसेस है. सो दैट कैन बी डन. या फिर अगर आप, इफ़ यू आर डिसाइडिंग टू लिव इन द मिडल ईस्ट,
तो वहाँ तो हो जाती है आराम से. I don't think that's a problem. Sponsoring spouse visa in the Middle East. If we decide to settle in the Middle East and I secure a job there, where would I be able to sponsor a visa as my spouse? Do Middle Eastern countries offer spouse visas similar to the UK? This is a critical factor in determining how we move forward. Number 4. Challenges of life in the UK. Living in the UK is also a challenging prospect. To stay here long term, I would need to secure a job with a company licensed to sponsor visas, which would tie me to that employer. This dependency feels both limiting and draining, especially when we're thinking about building a stable, independent life together. Number 5, losing a job in the Middle East. If I were to lose my job in the Middle East, देखा आप जरा नोटिस कर रहे हैं कि कितनी थॉट है शादी में. हमारे यहाँ वही शादी करनी है बस, जो होगा बाद में देखेंगे, पहले शादी करा दो मेरी. यहाँ पे देखो पूरी एक लिस्ट है. पढ़ा लिखा इंसान है ना, तो वे कर रहा है प्रोज एंड कॉन्स, सारे ऑप्शंस देख रहा है कि क्या होगा. ये नहीं कि अभी कर ली बाद में देखी जाएगी. ओ अल्लाह मालिक पे दुनिया नहीं चलती भाई. अल्लाह बिल्कुल मालिक है. अल्लाह ने अकल दी है और उस अकल के मालिक आप खुद हैं, तो वो ज़रा इस्तेमाल कर लें. Okay. Losing a job in the Middle East. I like how he's created all the possible scenarios. कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा. If I were to lose a job in the Middle East after several years, and if we have children by then, we worry about what would happen next. Would we be forced to return to our respective countries? If so, the barriers to visiting each other would resurface again, making it difficult to keep our family together. How can we prepare for such a scenario and ensure that we're not left without options? There are many more things and details that I want to add, but the email is already too long. I'm not sure if this email will reach you, but even writing to you gives me a sense of relief and hope. If you have any words of wisdom, I'd be truly grateful. Thank you for being a voice of reason and compassion in a world that often lacks both. Also, not to forget, she recently met you in Karachi again, and guess what? She once again made a video with you. I'm going to attach both the videos so you can have a better idea and connection. Lastly, I had emailed you before from my university email ID, but I could only access it until the end of the semester. Unfortunately, the university has shut it down, so I'm once again writing to you from my main email ID. Wishing you all the best in your endeavors. और फिर साथ में इन्होंने 2 वीडियोज़ भेजी हैं. I definitely remember. I had totally forgotten about the Selfridges वाला until I saw this email. I think मुझे उन्होंने जब मिली थी दोबारा यहाँ कराची में, she reminded me and I'm like, मैंने शायद awkwardness में बोल दिया कि हाँ okay yeah I remember, but मुझे definitely नहीं याद था. So thanks to you, आपने दोनों वीडियोज़ भेजी. She's a lovely girl and like the glee in her eyes says a lot about how immensely she loves you, and I can tell that for a fact because I have seen a lot of eyes with and without love. So the excitement that she has about you, dude, she's the one, absolutely. And it gives me immense pleasure to see people in love. There is still hope in the world. So Louis C.K. ने भी ये कहा था ना कि seeing people in love means there is still hope. People are still finding hope in each other. They are still procreating, और इंसान अपने आप को आगे से आगे लेके जा रहा है. So like even in all these dark times, in the darkness around us, people are still finding love and creating homes. So it makes me very, very happy. Definitely makes me very happy as well to see people like that. Like वो एक टीनेज एक्साइटमेंट ही अलग होती है. They're not teenagers of course, but वो एक होती है ना something that you don't see as you grow older. 30-35 के बाद आपको ना सारा टेम्पलेट समझ आ रहा होता है. अच्छा ये यूं है और मैं यूं बोलूँगा तो ये जवाब आएगा, यूं है तो ये है. सो इक्वेशन बैठ रही है या नहीं बैठ रही. लाइक वो आप इतना अगर आप थोड़े से माइंडफुल हो एंड इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द गेम, तो फिर वो एक्साइटमेंट नहीं रहती बिकॉज आपको सब पता होता है कि ये बात यहाँ से कहाँ तक जाएगी, कि ये बात बन रही है या नहीं बन रही है. एंड देन लाइक व्हेन यू ऑलरेडी नो तो कि मैं ये मूव करूँगा तो ये आएगा, तो ये नहीं है, तो फिर देन इट्स नॉट फन एनी मोर. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो ये ईमेल आपने सुनी, इंडो पाक लव स्टोरी सानिया शोएब पार्ट 2.0, जिसकी सारी उम्मीद दुबई से ही लगाई जा सकती है. अब ये सिचुएशन आपके सामने है कि पहले वो यूके में, अच्छा पहले तो मैं ये बताऊँ कि वो यूके क्यों नहीं आ पा रही. देखो इंग्लैंड को चाहिए हमारा पैसा. वो कहते हैं कि भाई बार बार अप्लाई करो और स्टूडेंट वीज़ा पे आओ और यहाँ पे जॉब करो, अंडर द टेबल ओवर द टेबल जो भी है, पैसा तो कमा रहे हो, पैसा तो खर्च यूके में ही हो रहा है. हमारी इकॉनमी का पहिया चलाओ और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसें भरो. और यस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं दे ब्रिंग इन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स एवरी ईयर. और जब वो हो जाता है तो फिर कहते हैं कि अगर तो आप में स्किल है तो रह लें,
और हम देख लेंगे, अगर नहीं है तो फिर वापस जाएं। अच्छा, अब जब वापस आ जाते हैं तो अब चूंकि आपके जहन में होता है यार मैं तो वहाँ रहा हूँ तो मुझे वीज़ा लगने में कोई मसला तो नहीं है, बट चूंकि इस बार आप जा रहे हैं तो एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं। अब वो टूरिस्ट जो है आगे पीछे भाग भी सकता है, या वो टूरिस्ट अगर तो सिंगल लड़की है तो शादी करके वहाँ बैठ भी सकती है, फर्दर बर्डनिंग द सिस्टम। ओके, तो सिंगल लड़कियों का बहुत मसला रहता है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, क्योंकि 9 out of 10 टाइम्स यही तो ऑफ एज है ना, शी इज़ लाइक द परफेक्ट एज हु इज़ अबाउट टू सेटल डाउन और इज़ एट द राइट एज टू सेटल डाउन। तो वो फिर डिस्करेज करते हैं इस चीज़ को कि यार ये वहाँ आएगी, लीगली हम रोक तो नहीं सकेंगे कि अगर उनकी शादी हो रही है वहाँ पे, एंड देन शी इज़ गोना सिट डाउन एंड फाइल फॉर सिटीजनशिप, और फिर ये वो फिर हमारे मुल्क में एक और पाकिस्तानी आ जाएगा। तो उस चीज़ को वो डिस्करेज करते हैं। हैड शी बिन मैरिड, और यहाँ पे नादरा का FRC इसलिए मांगते हैं, जो फैमिली ट्री वाला मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं कि आपके टाइज क्या हैं। मेरा वीज़ा नहीं रिजेक्ट होता क्योंकि भाई बीवी बच्चे हैं ना, मैंने भागना है, कारोबार भी है, सब कुछ है। तो जब वो सारे टिक बॉक्स हो जाते हैं ना, तो कहते हैं ये क्यों भाग रहे, ये क्यों, मैं ये सब छोड़ के वहाँ पिज्ज़ा क्यों डिलीवर करूँगा। सो व्हेन देयर इज इनफ प्लॉजिबल रीजन देयर लाइक ओके खली वली रहने दो। सो अब क्लियरली शी इज़ नॉट मैरिड, शी वांट्स टू मैरी यू, तो फिर FRC में तो नहीं होगा कोई श्योर, श्योर तो आपने होना है। तो अब चूंकि वो नहीं है तो इस वजह से वो वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है और बार बार हो रहा है। और वो क्यों ना करें वीज़ा रिजेक्ट, उनको हर वीज़ा एप्लीकेशन पे जब 70-75 हज़ार रुपये मिल रहे हैं फ्री के, 300 पाउंड या 250 पाउंड वडेवर, राइट, तो कमाने का धंधा लगाया हुआ उन्होंने, और उनको पता है कि इसने तो आना ही आना है। फिर वो देखते हैं कि अच्छा ये रह के भी गई है, सो शी हैज़ अ टेस्ट ऑफ UK, शी इज़ मिसिंग दैट लाइफ, तो ये डेस्परेट आएगी, या इसके भाई भी आए तो इसके और रीज़न है ये आना चाहिए, तो हम रिजेक्ट करते रहते हैं। देखते हैं इफ़ यू गो थ्रू अ लीगल राउट, और फिर लाइक इफ़ यू बिल्ड अ केस अराउंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई वॉज रिजेक्टेड 4 times। अरे मेरी बीवी वहाँ है भाई, तो फिर वी वेंट थ्रू द लीगल राउट कि भाई MP को लिख दिया ये वो, फिर लग गया वीज़ा। एनीवे, सो इसमें क्या केस है, बिकॉज यू आर नॉट रिलेटेड माई डियर लॉयर, dearest lawyer from London, if she is listening, she can advise, if you want I can connect you to her। मगर ये कि खैर ये तो UK वाली बात हो गया, वो UK नहीं आ पा रही। अब ये जो इंडो पाक वाला है ना, इसमें मैं एक एंगल ज़रूर सोचता हूँ, और वो एंगल ये होता है कि शादी में तो चलें, अगर आप स्टेबल इनफ हैं तो आप यू फ्लाई योर इमीडिएट फैमिली टू दुबई और इंडोनेशिया, बाली, श्रीलंका, वेरेवर, जहाँ भी डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, क्योंकि इंडो पाक में तो नहीं हो सकती, राइट, तो वो तो हो गया। व्हाट हैपन्स टू द चिल्ड्रन, बिकॉज फिर उनके पास वो इमीडिएट फैमिली नहीं होती, वो मामू का एक्सेस नहीं होता हर वक्त, या चाचू का एक्सेस हर वक्त नहीं होता, या फिर नाना नानी या दादा दादी, दे मिस आउट ऑन दैट रिलेशनशिप। तो मैं आई रियली वांट टू नो, जितने लोग सुन रहे हैं जो इंडो पाक मैरिजेस का नतीजा है, जो बच्चे हैं जो लेट्स से दुबई में पले बड़े बिकॉज ऑफ सेम रीजंस, जो दोहा में पले बड़े, कुवैत में, बहरीन में, सऊदी में, आपका चाइल्डहुड कैसा था, एंड लाइक डिड यू मिस आउट ऑन दोज रिलेशनशिप्स के एक्सेस ही नहीं है, 2 साल में 3 साल में एक बार वीज़ा मिल रहा है, अब तो खैर वो वीज़े भी नहीं मिलते ना। तो हाउ डिड दैट इम्पैक्ट योर लाइफ, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for future unions to know about। so that is also a key factor। ज़ाहिर है बच्चों को सिर्फ माँ बाप नहीं चाहिए होता, उनको एक पूरा यूनियन चाहिए होता है ना, वो एक पूरा सर्कल ऑफ लाइफ। ठीक है, बहुत सारे कपल्स जो हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, वो भी तो अकेले ही रहते हैं, देन दे विजिट फैमिली वंस अ ईयर, बट दे विजिट वन कंट्री ना, वो पाकिस्तान ही आना होता है, ओके क्योंकि सब पाकिस्तान में ही हैं, या फिर इंडिया ही जाना होता है क्योंकि सब इंडिया में ही हैं, 2 मुल्कों में नहीं जाना होता। दैट्स देयर इज़ अ डिफरेंस, एक्सेस का इशू है। एंड देन फाइनेंशियली, अगर इसकी फाइनेंशियल साइड पे देखें, फिर आपको हर चीज़ 2 बार करनी है, आपको उनके यहाँ भी जाना है, इनके यहाँ भी जाना है। सो लाइक साल के फिर 2 हॉलीडेज़, फिर 2x हो जाता है आपका हर एक्सपेंस, राइट। हर बार तो आप अम्मी पापा यहाँ से, मम्मी पापा यहाँ से, 4 लोग और फिर बहन भाई मिला के 12 लोग तो नहीं दुबई में आएंगे ना आपसे मिलने। 12 लोग दुबई हैं, उससे बेहतर है 2 लोग थोड़ा यहाँ आ जाए, थोड़ा यहाँ आ जाए। सो दैट एक्सपेंस इज़ ऑन यू। व्हाट हैपन्स इन दैट सिचुएशन कि फिर आपको आपके खर्चे 2x हो जाते हैं एसेंशियली, राइट। दैट इज़ ऑल्सो अ साइड टू सी। तो ये तो हो गया, आप दोनों को तो प्यार है एक दूसरे से, तो वो बात तो हो गई, और सेटल डाउन होना है, ये बात भी क्लैरिटी पूरी है। You're clearly meant for each other, and I've seen that in her eyes, and I see that in your email as well।
ओके, रही बात अब इसकी फंक्शनैलिटी की कि भाई इसको फंक्शन कैसे किया जाए। सो फंक्शनैलिटी की अगर हम बात करें तो एक तरीका कार तो ये है कि आप यूके में अगर इफ़ यू डिसाइडिंग टू वर्क एंड इफ़ यू गेट अ जॉब देयर एंड देन फिर वो शादी करके स्पाउस वीज़ा वाला राउट, बट दैट अगेन इट सेल्फ इज़ लाइक साल 1.5 साल 2 साल का प्रोसेस। शरीन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो वो एक अलग है। एंड देन वंस यू मूव टू द यूके, तो यूके में फिर लाइफ जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट इज़ लाइक दैट, द स्कूलिंग इज़ ग्रेट, हेल्थ केयर नॉट सो, नथिंग टू राइट होम अबाउट। बाकी इस एनवायरनमेंट से और उस कल्चर से आप बिल्कुल अवेयर हैं। एंड देन यू हैव योर चिल्ड्रन देयर एंड देन इवेंचुअली यू ऑल गेट अ ब्रिटिश सिटीजनशिप in the next 7 8 years, and फिर उसके बाद you are free to move, not really because आपकी wife, I'm assuming she is born in Pakistan, तो चूँकि उनका बर्थ प्लेस फिर भी पाकिस्तान होगा तो she would still have थोड़े बहुत issues in accessing India. And I'm saying this because a lot of my American friends wanted to go to India for the World Cup, they were all denied the visa. तो ये एक सीन है, ओके। बट एटलीस्ट यू हैव ब्रिटिश सिटीजनशिप एंड देन लाइक यू कैन ईजिली मूव अराउंड द वर्ल्ड, मिडल ईस्ट वगैरह, यू कैन सिक्योर जॉब। अगर वर्स्ट केस सिनारियो तो एटलीस्ट यू आर गोइंग बैक टू वन सिंगल कंट्री। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फास्ट, देखें वही वाली बात है ना, हार्ड चॉइस इज़ ईजी लाइफ, ईजी चॉइस इज़ हार्ड लाइफ, राइट। अब हार्ड चॉइस अभी ये है कि आप अभी शादी करें, ऑनलाइन की शादी, एंड देन वहाँ पे आप फाइल करें एंड देन स्पाउसल वीज़ा से वो यूके आए एंड देन लाइक यू बिल्ड अ लाइफ इन यूके 7 8 साल, एंड देन इफ़ यू डोंट लाइक इट एज मच, मिडल ईस्ट मूव हो जाएं। मिडल ईस्ट में यू नो यू गेट द कल्चर, यू गेट द फूड, एवरीथिंग इट्स ग्रेट, एंड देन वर्स्ट केस सिनारियो यू बैक टू यूके। सो हार्ड चॉइसेस शुरू की 2 साल की, बट आगे का ईज ये है कि सारे मिलके एक कंट्री जा रहे हैं। ईजी चॉइस इज़ हार्ड लाइफ। ईजी चॉइस अभी क्या है, डिग्री ख़त्म करो और सीधा आ जाओ दुबई या सऊदी और दोहा, गेट अ जॉब देयर। शी कैन ईजिली फ्लाई, हर दुबई तो शी कांट फ्लाई एज ऑफ नाउ, बट हाँ शादी अगर हो जाए तो स्पाउस वीज़ा भी आजकल दुबई का स्पाउस वीज़ा का क्या सीन है मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए पूछ लें ज़रा, और जो लोग देख रहे हैं कमेंट में बता दें। बाकी सऊदी वगैरह की कोई इतनी मुश्किल नहीं है, दुनिया जहाँ के लोग शादी करके स्पाउस वीज़ा पे फैमिली को वहाँ मूव करते हैं। साल की कोई ना कोई फ़ीस होती है उसकी, जो आपके डिपेंडेंट्स की फ़ी होती है, राइट। नाउ उसमें ये है कि फास्ट ट्रैक ये हो रहा है कि शायद उसमें साल 1.5 साल 2 साल का प्रोसेस ना हो। एज सुन एज यू लैंड इन दुबई और सऊदी और दोहा एंड यू गेट योर जॉब, यू अप्लाई फॉर द वीज़ा, रफली टेक्स अ मंथ और 2, बहुत ज़्यादा भी हुआ तो यू स्टार्ट लिविंग लाइफ ज़बरदस्त किस्म की बूस्टर लगा के। यूर इन द मिडल ईस्ट नाउ, राइट। बच्चे हो गए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दे हैव अ लाइफ। वर्स्ट केस सिनारियो कोई मिडल ईस्ट में वॉर हो जाए या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा आ जाए, राइट, एंड देन you lose your job or something, and then because you are still an Indian, she's still a Pakistani, that is a problematic time. हाँ, अब इसमें ये भी मुझे लोग बताएं कि बच्चों की सिटीजनशिप क्या होती है, बाप से चलती है सिटीजनशिप या फिर ये चॉइस होती है, ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं है। तो अगर इंडो पाक शादी है, बच्चा हो गया दुबई में, बच्चे की क्या नेशनलिटी है, क्या बाप से चलेगी या फिर माँ और बाप डिसाइड करेंगे कि भाई इसको, अगर माँ चाह रही है कि जी पाकिस्तानी होना चाहिए तो वो जाएंगे बुर्जुमान में, जहाँ पे बुर्जुमान के पीछे जहाँ हाई कमीशन है, या अगर चाह रहे कि जी इंडियन होगी तो वो जाएंगे खलीज सेंटर में। समझ रहे मेरी बात। तो आई एम नॉट श्योर उसमें क्या होता है। अज्यूमिंग सारे बच्चे पाकिस्तानी हैं, आपने डिसाइड किया क्योंकि बेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, विंक विंक, राइट। You lose your job, you lose your business. Dubai is like, Khalli Walli, it's over. The Dubai dream is over. The Doha dream is over. Now you have to go back to India. She has to go back to Pakistan with the kids. Or you take the, नहीं, बच्चे अगर पाकिस्तानी है तो then it's again long distance. And अभी का long distance bearable है because you haven't lived together. Once you get accustomed to each other and especially involving the kids, फिर नहीं रह सकते आप. Then it's hell. फिर तो वो आपको तो वो पेन पता ही नहीं जो पेन अभी चल रहा है। अभी आई एम श्योर यू बोथ आर हर्ट डीप डाउन कि यार यू नॉट टुगेदर, यू डोंट कम होम टू ईच अदर, बट डूड दैट पेन 10x पेन होगा। एंड फिर बच्चे भी ज़ाहिर है मिस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन बच्चों की एज क्या है, राइट। स्कूल गोइंग है तो स्कूल छूटेगा, एंड देन लाइक डाउनग्रेड है ना, दुबई से पाकिस्तान आएंगे तो डाउनग्रेड ही है भाई, बच्चे यहाँ कस्टम नहीं होंगे, एंड देन इट्स अनदर बैटल। एंड देन यू लुक अगेन कि चलो अब दोबारा हम यूके में लाइव कर लेते हैं, बिकॉज मैं तो वहाँ पढ़ता था,
फिर आपको क्या पता आपको भी वीज़ा ना मिल रहा हो बाद में, यू नो, जिस तरह इनको नहीं मिल रहा, देन व्हाट, एंड देन यू स्टार्ट ओवर ऑल ओवर अगेन. फिर वो यूके वाला राउट बहुत खिचड़ी है बॉस. सो वही वाली बात है, हार्ड चॉइस इज ईजी लाइफ, ईजी चॉइस इज हार्ड लाइफ. मैंने आपको दोनों सिनारियो रख दिए. नाउ दिस इज माई टॉप ऑफ द हेड सिनारियोज. बट ऑब्वियसली जितने लोग सुन रहे हैं, आपके जहन में क्या सिनारियोज आ रहे हैं, व्हाट्स द बेस्ट राउट यू वुड सजेस्ट. मुझे ये लगता है कि यार जवानी की पेन इंसान आराम से बेयर कर लेता है, थोड़ी आगे की पेन मुश्किल हो जाती है. तो जितनी जल्दी पेन से गुजर लो ना, आप स्ट्रांग हो जाते हो, राइट. पेन मेक्स यू स्ट्रांगर. जितनी जल्दी जिम करोगे बॉडी अच्छी शेप में आ जाएगी. अब 40 के बाद जिम शुरू करोगे तो फिर मसल सोर होगा, ये होगा, 10,000 प्रॉब्लम होंगे. पेन जितना जल्दी रह सके, पेन तो आना है ज़िंदगी में, पेन आना है. अब आप वो 20 में ले लो, यू बर्न योर एस ऑफ, यू वर्क योर एस ऑफ. उस कल मैं आई वॉज टेलिंग समथिंग टू माई मॉम, शी स्टार्ट क्राइंग. आई वॉज एक्सप्लेनिंग हर हार्ड चॉइसेस ईजी लाइफ, ईजी चॉइसेस हार्ड लाइफ. सो 2008 में मैं ऑलरेडी थाईलैंड जा चुका था अपने बॉस के साथ ऑन अ वर्क ट्रिप. आई एम जस्ट जोकिंग, वी वर जस्ट देयर टू मेस अराउंड. तो आई टोल्ड माई न्यू दुबई फ्रेंड्स कि यार थाईलैंड इज़ अ वंडरफुल प्लेस, ये यू विल एंजॉय. वी ऑल डिसाइड टू गो, राइट. बिल्कुल एंड में मैंने सोचा कि यार ये जो 4,000 दिरहम मेरे खर्च हो रहे हैं, जो कि मेरी पूरी सैलरी है, अगर मैं ये पैसे बचा के, देखो 1 हफ्ते में थाईलैंड में उड़ जाएंगे पैसे, ठीक है, देन इट विल ओनली बी मेमोरी. हाउ अबाउट इफ़ आई इन्वेस्ट दैट मनी इन टू माई कार का एडवांस, क्योंकि दुबई में गाड़ी और लाइसेंस के फ़ी और फिर इवेंचुअली गाड़ी, तो वो फिर मेरा करियर थोड़ा बन सकता है. माई फ्रेंड्स वेंट देयर, वो उदास से मैं नहीं आया क्योंकि मैंने सारे गंदे रास्ते बताए थे. नाना प्लाजा में कौन से वाली गली में जाना है, समझ रहे हैं ना आप. तो वहाँ से वो मुझे वीडियोस भेज रहे हैं एंड आई एम लाइक सो सैड इन माई रूम. बट मेरा नहीं यार, ये लॉन्ग टर्म में मेरे ही फ़ायदे की बात है. खैर वो आए, 1 हफ्ते में पैसे उड़ गए अली वली. मैंने लाइसेंस लिया, उसे गाड़ी ली, उससे मेरे आई बिकेम मोर एम्प्लॉयबल एंड देन इवेंचुअली इट शेप्ड माई लाइफ. सो मैं अम्मी को ये समझा, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड नाउ आई वाज टेलिंग हर, नाउ आई ट्रैवल व्हेनेवर द हेल आई वांट. I can take a flight in 6 hours and go to 3 different continents without anyone questioning me. That's the best life. So hard choices, easy life. उस वक्त अगर मैं मज़े ले लेता तो मैं आज शायद पेन में ही होता. So आप सबको यही मशवरा है, ज़िंदगी में जितनी जल्दी पेन ले लें तो बेहतर है, क्योंकि आगे पेन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. बस ये वाली बात है. So जो बेस्ट केस सिनारियो मुझे नज़र आ रहा है, विद ऑल द पॉसिबल शिट फॉलिंग थ्रू द रूफ, नहीं क्या, शिट हिटिंग द फैन, वो यही है कि आप लोग सारे यूके में पहले असेंबल हों, वहाँ से पासपोर्ट लें, फिर यू गो टू फेमिलियर कल्चर्स. मे बी यू गाइज इन्जॉय द यूके लाइफ एज वेल. आपको शायद ज़रूरत ही ना पड़े मिडल ईस्ट जाने की, राइट. एंड देन यू बिल्ड अ लाइफ देयर. उसमें यह कि मज़ीद 1.5 साल का शायद एडिशन हो जाए स्पाउस वीज़ा पे, पर उसके बाद तो इट्स ऑल सेफ्टी नेट. फिर आप लोग अलग नहीं हो रहे किसी भी सिचुएशन में, इन वर्स्ट केस सिनारियोज, बिकॉज यूर ऑल ब्रिटिश सिटीजन एंड यूर लिविंग इन ब्रिटेन. अगर आप अभी फ़ौरन थोड़ा पहिया चला रहे हो कि यार मैं 1.5 साल की मज़ीद जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कल ही पहुँचो दुबई या दोहा या रियाद एंड वी स्टार्ट आवर लाइफ, तो आपने बूस्टर तो लगा दिया, 7 तो हो गए. बट व्हेन शिट हिट्स द फैन, तो फिर ये जो 3 ब्रांचेस में आप लोग 3 डिफरेंट फ्लाइटों में जा रहे होंगे ना, ई के 602 अलग जा रही होगी, ई के 614 अलग जा रही होगी, दैट्स गोना हर्ट अ लॉट. So you need to save yourself from that future hurt, and it's not going to be just the 2 of you, it's going to be 4 of you potentially, right? So yeah, मेरा तो ये मशवरा है. बाकी ऑल अच्छा, रजिस्ट्रेशन का फिर ये है कि अगर तो यूके में हो रही है तो फिर वो तो फिर वहीं हो जाएगी रजिस्ट्रेशन. स्पॉन्सरिंग द स्पाउस वीज़ा मिडल ईस्ट मैंने आपको बता दिया. यूके के चैलेंजेस, लूजिंग अ जॉब इन मिडल ईस्ट. सो आई क्रिएटेड ऑल पॉसिबल सिनारियोज आपके लिए. बाकी आई वुड रियली वांट टू हेयर फ्रॉम Indo-Pak couples. Please write me an email. Please write to me all the challenges you face. Please write to me आगे क्या मसले मसाइल हुए, क्योंकि हर कोई शोएब और सानिया वाला ग्लोबल करियर नहीं रख सकता ना, कि वो इतना पैसा आ रहा है कि वो आराम से वहाँ भी रह रहे हैं, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एंड देयर लाइक मीटिंग एट डिफरेंट इवेंट्स वगैरह वगैरह. अब तो खैर वो नहीं है सिचुएशन. या फिर जैसे हसन अली रह रहा है, अब बेचारे का करियर भी नहीं है, शादी कर ली. एक तो हमारे यार ये क्रिकेटर ना, ज़रा दो सीरीज़ में चले, शादी कर लो, पहले शादी कर लो एंड देन फिर बीवियों के साथ जाते हैं टूर पे,
अब आप क्या परफॉर्मेंस दोगे अगर बीवी आपसे लड़ रही है कि भाई तू मुझे कल मॉल नहीं लेगा, भाई मैं सीरीज़ खेलने आया तुझे मॉल घुमाने लाया हूँ। तो जब वो लड़ रहा होगा कमरे में, टॉक्सिसिटी प्रो मैक्स होगी, तो क्या परफॉर्मेंस देगा? तो आपके सामने जहाँ शादी होती है बॉयज़ डाउन हो जाते हैं, दे कांट मैनेज नहीं कर पाते। खैर, बात कहाँ से कहाँ चली गई। लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू बोथ। आई एब्सोल्युटली am a fan of your love story, and this is happening right in front of me. It excites me. It makes me genuinely happy to see people in so much love and in so much into each other. She's a lovely girl. I've met her a couple of times, and I can tell you she's very much into you. Do not let that change. So do whatever you have to, and I hope I was able to answer your queries. बट गुड लक टू यू बोथ एंड यू हैव ऑल माई प्रेयर्स। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।